So today we will study the cardiovascular system. The cardiovascular system is the system that include the heart and the related blood vessels. That is arteries and the veins along with the heart that comes in the cardiovascular system. ठीक है? So first we will see the anatomical physiology of the heart. कि आपका जो heart है वो काम कैसे करता है? So anatomical physiology, the heart is a closed chamber that consists of the four compartments, two upper compartment and two lower compartment. The upper compartment is known as atrium and the lower compartment is known as ventricle. So as there are the two atrium and two ventricle, the right side portion is the right atrium and the left side portion is the left atrium. In the same way, the ventricle, the right ventricle and the left ventricle. Between the two atrium, that is right atrium and left atrium, between the right atrium and right ventricle, there is one orifice. There is one orifice. That orifice is known as right atrioventricular orifice. That orifice is known as right atrioventricular orifice. Right. In the same wise, we will get another orifice on the left side. That is known as left atrioventricular orifice. तो ऑरिफाइस का मतलब है लाइक दरवाजा, तो दरवाजे के चौखट पे दरवाजे लगे हुए हैं, तो जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफाइस है इस पे 3 कस्प लगे होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। जो लेफ्ट साइड का है उस पे 2 कस्प लगे होते हैं, इसलिए उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व का एक दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है? मिट्रल वॉल्व। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व। So this is what, and the left ventricle is the largest, strongest, and the most muscular chamber of the heart. So now we will see how the circulations occur in the heart. So as we know, the action of the heart is the pumping of the blood, and for pumping it requires the blood. So how the blood goes into the heart? From whole body there are the two main veins, that is the superior vena cava and inferior vena cava, through which the blood enters in the heart. The superior vena cava drains the blood from the body part that is above the diaphragm, and inferior vena cava drains the blood from the body part that is below the diaphragm. Likewise, the whole blood, that is deoxygenated blood of the body, reach the right atrium through the superior vena cava and inferior vena cava. And from the right atrium, the blood will go into the right ventricle through this right atrioventricular orifice. From here, the blood will go into right ventricle. And from right ventricle, there is the arise of the pulmonary artery. And through the pulmonary artery, the blood will go in the lungs for oxygenation. So this is the deoxygenated blood. And after the oxygenation in the lungs, the blood gets oxygenated, and after that it returns into the heart in the left atrium in this chamber by the pulmonary vein. So pulmonary artery and pulmonary veins are the only exception of the body. These are the artery and veins, and they contain the respectively deoxygenated and oxygenated blood. Being the artery, it should contain the oxygenated blood, but pulmonary artery is the exception. It contains the deoxygenated blood. In the same way, the pulmonary vein is the vein, but it contains the oxygenated blood. And from this left atrium, the blood will goes into the left ventricle. This left ventricle is the largest, strongest, and most muscular chamber of the heart. And from this, another largest artery of the body, that artery is known as aorta. This yellow color. And this aorta in Ayurveda is known as Mahadamni. Is known as Mahadamni. And from the aorta, the blood will enter in the each and every part of the body. So this is the anatomical physiology of the heart that is required to make the base of the further syllabus of the physiology. So today's topic is the cardiac cycle. In the cardiac cycle, the first introduction, what we will see. So what is the cardiac cycle? The cycle. What do you mean by cycle? Cycle means the cyclical repetition of various coordinated events. The cyclical repetition of various coordinated events that occurs. कहाँ पे हो रही है वो events? Heart में. That occurs in the heart. कब हो रही है? From beat to beat is known as cardiac cycle. Likewise, when we talk about there is another definition. कार्डियक साइकिल जब होती है तो दो मेन चीजें होती है, एक प्रेशर चेंज और दूसरा ब्लड का फ्लो चेंज। तो देयर इज द चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन द फ्लो ऑफ ब्लड। कहाँ पे हो रहा है? इन द हार्ट। कब हो रहा है? बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। सुनूंगा भी बाद में, समझ में आया? बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, तो दो लगातार होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में हार्ट के अंदर प्रेशर और ब्लड के फ्लो में जो चेंज होता है
उस प्रक्रिया को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, राइट। तो देयर आर द टू डेफिनेशन। वन डेफिनेशन क्या कहती है? साइक्लिकल रिपीटिशन, वो घटनाएं जो बार बार हो। अब कौन सी घटनाएं होंगी? एक इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होती हैं और दूसरी मैकेनिकल इवेंट्स होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होती हैं, जैसे ऐसे नोड है, एबी नोड है, बंडल ऑफ हिस्स है, इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट हो रही हैं वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में आता है। मैकेनिकल इवेंट्स में क्या आता है? जो हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो मैकेनिकल इवेंट्स में आता है। तो जो साइक्लिकल रिपीटिशन, बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, कौन सी घटनाएं? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। कहाँ पे हो रही हैं? इन हार्ट। कब हो रही हैं? बीट टू बीट, इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अनदर डेफिनेशन दैट वी कम टू नो, तो दो चीजें याद रखनी है, एक प्रेशर और दूसरा फ्लो ऑफ ब्लड। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेशर? तो हार्ट के अंदर प्रेशर कभी किसी कमरे का ज्यादा है, किसी चैम्बर का, कभी किसी चैम्बर का ज्यादा है, कभी एओर्टा का ज्यादा है, कभी वेन का में ज्यादा है। तो इस तरह के जो प्रेशर चेंजेस होंगे, और तो उस प्रेशर की वजह से ब्लड का फ्लो कभी राइट एट्रियम में आ रहा है, कभी राइट एट्रियम से कभी राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो जो ब्लड का फ्लो है वो डिसाइड होता है किसकी वजह से? कार्डियक साइकिल की वजह से। तो दो शब्द याद रखने हैं, एक चेंज इन प्रेशर और दूसरा फ्लो ऑफ ब्लड। कहाँ पे हो रहा है? इन हार्ट। कब हो रहा है? बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, इज नोन एज कार्डियक साइकिल, राइट। नाउ वी विल सी व्हेन ए हेल्दी ह्यूमन हार्ट, जब एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है तो उसकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। व्हाट आई एम सेइंग? स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, ना कि एक बीमार व्यक्ति का। अगर किसी की 60 है तो उसकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड नहीं होगी। अगर किसी की हार्ट रेट 100 है तो उसकी कार्डियक क्या चाहिए? जो बात हो, अगर किसी की हार्ट रेट जो है वो 100 है तो उसकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड नहीं होगी। इस 0.8 सेकंड्स में बेसिकली क्या होता है? हार्ट का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो पूरी बॉडी से ब्लड लेता है और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप आउट कर देता है, राइट। This is the one thing. Second thing, as I had told, कि there are the two types of events. One electrical and second is the mechanical. There is contraction and relaxation. तो हार्ट के अंदर दो टाइप्स के चैम्बर्स हैं, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रियम एंड देयर विल बी रिलैक्सेशन इन द एट्रियम। टोटल साइकिल 0.8 सेकंड की है। इस 0.8 सेकंड में एट्रियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है, यू फाइंड इट, तो दो तरह की इवेंट्स हो रही है, एक एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकंड का है और जो एट्रियम का रिलैक्सेशन है वो 0.7 सेकंड का है। इन द सेम वे जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड का है और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है वो 0.7 सेकंड का है। Now, along with this, there are the 8 steps or 8 phases that occurs in the cardiac cycle respectively. तो the 8 phases कौन-कौन से हैं? पहला phases है isovolumetric contraction, दूसरा phases है phase of rapid ejection, अभी बोलना नहीं है, सबको मौका बोले। दूसरा फेज है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, तीसरा फेज है फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन, चौथा फेज है प्रोटोडायस्टोल, पांचवा फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, छठा फेज है फेज ऑफ रैपिड फिलिंग, सातवां फेज है फेज ऑफ रिड्यूस फिलिंग, आठवां फेज है द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। ओके, so these are the 8 steps of the cardiac cycle. Now we will see one by one कि what happen in this phase. Okay, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या? हार्ट और डिलेटेड ब्लड वेसल्स वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती है, राइट। देन व्हाट आई टोल्ड कि हार्ट काम कैसे करता है? तो हार्ट का काम क्या है? बीइंग द फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, हार्ट का काम क्या है? द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो पंपिंग एक्शन किसका? पंप किसको कर रहा है? ब्लड को। तो ब्लड आना चाहिए, सुपीरियर वेनी केवा इंफीरियर वेनी केवा के थ्रू हार्ट में आ गया। उसके बाद प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास चला गया, लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी सी आर्टरी निकली, उस आर्टरी का नाम था आयोटा, और आयोटा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में पंप आउट हो गया। फाइन, समझ आया? राइट। अब क्या हमने पढ़ा? कार्डियक साइकिल। तो रटना कुछ नहीं है, साइकिल का मतलब साइक्लिकल इवेंट्स, बार बार घटनाएं जो हो रही है। कहाँ पे हो रही है? हार्ट में। कब हो रही है? बीट टू बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। दूसरी डेफिनेशन में दो शब्द याद रखने हैं, एक प्रेशर और दूसरा फ्लो ऑफ ब्लड। तो प्रेशर और फ्लो ऑफ ब्लड चेंज होता है, कहाँ पे होता है? हार्ट में। कब होता है?
between two subsequent contraction. This is known as cardiac cycle. तीसरा पॉइंट याद रखना है, जब एक स्वस्थ व्यक्ति की का हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है तो उसकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। इस 0.8 सेकंड में हार्ट का राइट साइड वाला पोर्शन ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ब्लड को पंप आउट करता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो कार्डियक साइकिल है उसके अंदर दो तरह की घटनाएं थी, एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और दो तरह के कंपार्टमेंट हैं, एक एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एट्रियम में भी